everyone. Now we move to the first segment of today's program, the Thought Leadership Lecture. Before inviting our honorable chief guest, let me briefly present his professional career. Today we are joined by a man whose life reflects extraordinary resilience, leadership and purpose. Mr. Zafar Masood is a Pakistani banker, thought leader, public policy figure, philanthropist, and author with over 3 decades of experience in development finance, energy, and corporate governance. He is the president and CEO of the Bank of Punjab, Pakistan's second largest public sector bank. The bank has a balance sheet of $9 billion and over 15,000 employees. Since taking charge in April 2020, Mr. Masood has more than doubled the bank's deposit, lending, and profits. He also serves as the non-executive chairman of the Oil and Gas Development Company, OGDC. This is Pakistan's largest listed company and is also traded on the London Stock Exchange. OGDC produces over 40,000 barrels of oil per day and 650 million cubic feet of gas daily, worth up to $11 million. Mr. Masood is the elected chairman of the Pakistan Bank Association. He is also the founder of Zafar Masood Foundation. Moreover, Mr. Masood is the regular commentator in Pakistani international media on banking and economics. He is the author of Out of the Box, international bestseller Seat 1C, A Survivor's Tale of Hope, Resilience and Renewal. Please join me in welcoming Mr. Zafar Masood sir. Sir, kindly come on the stage. बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब का, बहुत शुक्रिया ईडी साहब का, बहुत शुक्रिया आईसीएमए की मैनेजमेंट का, बहुत शुक्रिया आप तमाम ऑफिस बेयर्स का. It's always a pleasure and honor to be interacting with the professional bodies and particularly the younger, the budding, as I call them, the budding professionals. I could see some of them here as well. Encourage them to ask questions. Thank you for a great video, Mario. I think it's you have it has encapsulated the entire episode quite well. But given the the briefing that I got from ED Saab and the team, I'll try and go through first, how this whole thing has changed my life, which resulted in me writing the book. What are the learnings from that book? And then, of course, how those learnings have been put into action, which is the most difficult part, really. And lastly, what are the results of those actions that we do? वैसे तो मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है, बट मैं थोड़ा सा बिल्कुल पर्सपेक्टिव में चीजें डाल दूं. I am a banker by profession. I am a survivor, plane crash survivor by circumstances, and I am author by reflection or by choice, as you can call it. This has resulted in incongruous thoughts in my mind, and those thoughts have impacted my faith, my power of understanding what the real power means, and of course the clarity on what the responsibility in life is all about. You've already been briefed about the whole thing, but let me just reinforce that it was an inflection point. The crash was an inflection point in my life, and the experience post crash has fundamentally reshaped the leadership perspective. The traditional assumptions that the stability is temporary, the control is limited, is been washed away. And it's actually, the fact is that it's the
The risk is something which is part and parcel of the life which you cannot ignore. And you have to live with the fact that these perils are genuine in life. And only at an institutional level you can mitigate these risks, but these are the systemic things which you cannot avoid. So therefore, we need to reconcile the fact that risks in life, even to your own life, is something which is a real risk which you can only mitigate. You cannot, or you choose to how to respond to it. You cannot completely eliminate that in your life. That resulted me to write a book. I've written this book, which is my second book actually, technically. It's called Seat One Seat. Um, this is my 55th book talk, by the way. Since the launch in February last year, I have already done 54 talks. Some of you I can see who have attended my earlier talks as well. The book has already been translated into Sindhi and Spanish. Spanish तो release भी हो गई है. Sindhi जो है वो अभी publication में है. The French is being talked about, is being translated as we speak. Punjabi is something which I've already talked to somebody about. These are 2 under translation books right now. So far, 6,500 copies have been sold, both locally and internationally, which makes it the international bestseller. And now, by the way, मैं अभी ईडी साहब को भी बता रहा था. Now the sequel of Seat One Seat is also ready now. It's called उसका functional नाम अभी जो है वो है in the courtroom of the self, 30 seconds live before death. What is this book all about? The book is about the musings in those 30 seconds that the life, I was alive, but I could see the death in front of my eyes. It's about 10 learnings, and I believe I owe these 10 learnings to the humanity. Because there are very few people in this world who have actually seen the death so closely and then come back and tell the tale of what would happen when you are confronted with death. And let me tell you something, we all will be confronted with death. I have escaped it once. I have no illusion that I will escape it again. It will come back again. But because I have seen it so closely, I believe this is my responsibility to come and talk about this to the audience, to the people as much as possible, to tell them, what will you face when this will come, this time if you will come face to face with me. It was a normal day, as you saw here in the video as well, and the flight was pretty smooth as well, until that unfortunate thing happened where, the engines had greased on the tarmac, and then they failed and the plane crashed on the habitat. Otherwise it was a pretty normal day. While people blame, the pilot squarely for this crash, some people blame the airline as well. I call it is a failure of the ecosystem. It is not 1 or 2 or 3 people or 1 or 2 or 3 institutions. It was the failure of the entire ecosystem. And that failure of the ecosystem was something which has resulted in these kind of crashes. It is the failure of us as individuals as well, because our appetite to accept this crash has also increased. We all have started accepting this as a norm. If you look at the recent history, every 10 years there has been one crash. Why is that? Because we as individuals have also accepted it.
So it's an ecosystem failure. It is not a failure of one individual or two individuals. It is the entire ecosystem which has failed here. It's an economic issue. It's a religious issue. It's a social issue. It's an economic issue. Whatever way you look at it, it is an issue which is culminated. This kind of crash could only culminate, take away, the lives of 100 souls when the ecosystem fails. Not by design, it's just by chance that it turned out to have 10 learnings. The first and the foremost being, and most relevant to you all, because आप लोगों का काम से ताल्लुक है, पैसों से ताल्लुक है, आप लोग by default बड़े या तो internal auditor होते हैं या CFO होते हैं, तो आप लोग बड़े arrogant लोग हो जाते हैं, because आप लोगों के हाथ में control है, तो जिसके हाथ में control होता है वो थोड़ा सा उसमें tendency होती है to become hubris, and to my mind this is the single biggest problem in life. And this is the single biggest disaster that could happen to any individual, which results into this kind of crash. This crash, one of the key things was actually the arrogance. And it is not the arrogance of an individual, it was the arrogance of the business, it was the arrogance of the institutions. And, when hubris happens, empires fall. अभी हम बात कर रहे थे वहां बैठ के भी, एक बहुत बड़ी empire है जो हम देख रहे हैं कि इस क्रैशिंग डाउन, हमने रशिया को भी देखा। मैं पड़ोसी की बात कर रहा हूँ प्लीज, ताकि और क्लियर हो जाए कि आप देखिए कैसे वो एक्सपोज हुआ। प्राइमरी रीजन देयर इज, जो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, एक्चुअली एरोगेंस ऑफ आवर पड़ोसी इन द ईस्टर्न on the eastern border, which is one of the testaments of how the arrogance can pull you down. The second learning is goodness of people. The goodness of people is also something. In fact, वो मुझे हुबरस पे जो उनका रईस अमरूवी साहब का बड़ा अच्छा एक कथा है वो याद आ गया। वो कहते हैं कि कहने लगे कि हमको तबाही का डर नहीं। कहने लगे कि हमको तबाही का डर नहीं। मैंने कहा वजह तबाही यही तो है। उसके आगे वो उन्होंने बहुत उनका शेर है, वो मुझे भी याद आ जाएगा, मैं आपसे शेयर करूंगा। मगर द बॉटम लाइन इज के योर डाउनफॉल स्टार्ट्स द मोमेंट यू बिकम एरोगेंट। गुडनेस ऑफ पीपल, मेरा जो है एक फेथ रीइंफोर्स हुआ दैट पीपल आर इनहेरेंटली गुड पीपल, एंड जिस तरह लोगों ने मुझे पुल आउट किया इस एक्सट्रीमली वोलेटाइल सिचुएशन में से, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि लोगों ने अपनी जिंदगी को जान जोखिम में डाल के मुझे वहां से पुल आउट किया। miracles do happen, there's absolutely no doubt about it, but do not bang your life, do not depend your life on miracles to happen to change yourself, to change your fate. Then you have to work hard, you have to work at it to change your life. Dues, मैं बैंकर जरूर हूं मगर ये फाइनेंशियल ड्यूज नहीं है, ये इमोशनल ड्यूज है। फाइनेंशियल ड्यूज तो शायद इतने जरूरी नहीं है, मगर इमोशनल ड्यूज जो आपने देने हैं दूसरों लोगों की तरफ, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और उसको हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो कभी ओवरड्यू ना हो। फाइनेंशियल ओवरड्यू हो जाएगा तो शायद बैंक लोन नहीं देगा, लेकिन अगर इमोशनल ओवरड्यू हो गया तो गालिबन गड़बड़ हो जाएगी बाद में। तो लिहाजा उसको जरा ध्यान में रखिएगा कि ड्यूज जो आपने देने हैं वो आप उस पे अपडेटेड रहे। नेक्स्ट वन इज सिंसेरिटी। सिंसेरिटी कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, और जो जिस लेवल पे इसको कर पाता है वो उतना ही बड़ा इंसान बन सकता है। सिंसेरिटी विद योरसेल्फ, to be very clear about yourself कि आप जो है आपकी अपनी strengths और weaknesses क्या है और आप उसको accept करें, and sincerity with the other people as well, वो dependent on you। आप लोग सब senior professionals हैं, आप पे बहुत लोग depend करते हैं for a very sincere advice, and for that sincere advice you have to be very sincere with them to make sure
कि आप उनसे सिंसियरिटी के लेवल पे डील करें। बाज औकात आपको अपना इंटरेस्ट साइड पे रखना पड़ेगा उन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो आप पे डिपेंड कर रहे हैं। और ये कोई आसान काम नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है, मगर अगर हम इस पे काबू पा लें या उस लेवल पे पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ा आपके लिए एज अ लीडर भी और एज एन इंडिविजुअल भी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। विल पावर कैन मूव माउंटेन्स रियली। यहां मैंने जो विल पावर का स्पेशली जिक्र किया है वो इस कॉन्टेक्स्ट में किया है कि किस तरह विल पावर जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर योर ओन रिकवरी फ्रॉम द सेटबैक्स यू फेस, चाहे वो फिजिकल सेटबैक हो या मेंटल सेटबैक हो या प्रोफेशनल सेटबैक हो। अगर आपकी विल पावर होगी तो यू विल बाउंस बैक एंड यू विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू देम वेल। Rituals, this is my favorite learning by the way. The rigidity of rituals is a killer. And यहां पर मैं रुकूंगा क्योंकि जो अगली तीन है वो डायरेक्टली आपके प्रोफेशन, आप लोग की प्रोफेशनल लाइफ से रिलेट करती हैं। यहां मैं जरा आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और my thoughts about rituals, and then we go back to the remaining three learnings. Essentially, what I'm talking about is that rituals are good for life. Rituals are something which are important for life to put a discipline in your life. But rituals shall not be the end all and the be all in your life. It is something which is an outcome of something which we need to keep in mind. कि rituals आप क्यों follow कर रहे हैं, उसका eventual objective क्या है, and then get to the core and then follow that through. So this is what the rituals are all about. So the moment it becomes rigidity in rituals, you're heading for a trouble. The next learning is communication. Communication is बहुत important है in our professional life, but it is something which was one of the reasons why the crash happened and so much loss happened, because the stress was not, for example, announced when the crash was about to happen. Board steps के बगैर तो बात बनती नहीं है। आप अगर बोर्ड स्टेप नहीं लेंगे जिंदगी में तो आप वो सीलिंग नहीं तोड़ पाएंगे। वो सीलिंग आप उसी वक्त तोड़ते हैं जब आप बोर्ड स्टेप लेते हैं, चाहे आप किसी की नौकरी कर रहे हो या आप खुद अपना बिजनेस कर रहे हो। बोर्ड स्टेप्स इज द की। And last but not the least, you have to be very clear on what kind of legacy you want to leave behind. And ladies and gentlemen, let me tell you something. Legacy is all about people and impact on people. Your relationship with people, your impact with people, your connection with people is something which should be your legacy. Nothing more, nothing less. This was about the book. Now, I could have chosen an easy path of just talking about my book and my learnings. But putting those learnings into action was the biggest challenge, really. And this is what, I chose to go for. And my leadership philosophy has to be translated into the balance sheet numbers जो आपको ईडी साहब ने भी अभी थोड़ा सा जिक्र किया। And मैंने ये देखा कि किस तरह concentration जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा सकती है, किस तरह कोलैटरल बेस्ड लेंडिंग जो है वो कैश फ्लो की तरफ जा सकती है, किस तरह कॉर्पोरेट्स जो है वो इकोनॉमिक बेस पे जा सकते हैं, नॉट जस्ट फोकस ऑन द बॉटम लाइन ऑफ देयर on a short term basis. It should be the medium to long term objective that we need to keep in mind. And the legacies are not built by balance sheets alone. They are built on the economic impact, not just the bottom line per se. I also look at the structural gaps which are out there. There is very limited support for, and I digress towards lending in my own business, which is lending to SME and agriculture, and figured that and figured out that low cost housing is equally important as well. Plus the education and health piece. What are we doing in all those spaces, and what can be done out of them? Agriculture,
which contributes directly 23%, but directly indirectly 46.3% towards the GDP. SME contributes 40% towards the GDP. And the credit extended to these two big sectors, which helps in alleviating the poverty, is 7% and 5% respectively, below. The reasons were very obvious. There is high degree of non-documentation. There is lack of formal histories available to the banks, and hence resorting on the collateral to secure their lending. There is a serious missing of proxy data to figure out the cash flow strength of any individual or a company. And obviously the result is that it's a prevalence of informal sources for funding rather than focusing on the bank financing, which is cheaper and hence results into non-competitive, non-productive cost of doing business. मेरी theory है, इसको मैं कहता हूँ फाउंटेन हेड एंड पॉन्ड एनालॉजी. ये अभी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छप भी रहा है और मंडे मैं आपसे पहले शेयर कर लेता हूँ. ये रीइंफोर्स करता है जो मैंने अभी आपसे बात की. 59% of the GDP are three sectors which barely contribute 15% to the taxes. And that makes the entire model unviable, the economic model unviable. And results in substantial bank borrowing by the dominant borrower, which is Government of Pakistan. There is multiple impacts of this. Liquidity is being sucked out of the system. But more importantly, it's not just the liquidity, it's actually the documentation which makes the lending impossible for the banks to follow. And as you know, our orientation is to lend what we can see. We lend against the documents, not against the goods. But that's not our desire, it's just a prevention of any potential default. So therefore, it's important to have the proper documentation in place. The second dimension is about the tariffs. The import tariffs, if they're too high, then it makes it gives an implied subsidy to the imports. And the result is that your exports are not competitive the way they're supposed to be competitive. If your exports are not competitive, any cyclical situation could result in non-predictability to your cash flows. It also results in depending on lending to the sectors where there is a lot of dependence on the government subsidy, which is always a tricky business. Therefore, it's difficult for the banks to lend to these high-risk sectors. The biggest opportunity, therefore, is in medium to small enterprises, which cuts across all industries, including agriculture. In fact, they contribute 78% of the non-agri job. This contribute 40% towards the GDP, 25% towards the exports, and 85% operates under informal category. With this kind of situation, I think it's very unfair to ask the banks to do the lending to them. Why did the bank fail? Banks fail because there is lack of documentation in agriculture, SME, and low-cost housing. There is a lack of formalization in the sector. There is lack of specialization of agriculture and MSME penetration in the banking sector. The result is that there is high cost of fund, lack of insurance availability, and it's categorized as high risk business for the banks. Now, this is what the reality of the banks is, the reality of the industry is. What is the edge that BOP has, which resulted in the impact that we have been able to create, which the others could not?
I'll just talk about it now. So, mainly two big categories. One is the access to data and digital infrastructure. Whether it's the access to Pelra data, whether it's the AI scorecard, whether it's the access to NADRA, ECIB, all of them had created an advantage for the POP system than the other banks. Second is the large reach and accessibility to the merchants across Pakistan, to the micro farmers across Pakistan. But ladies and gentlemen, let me share with you something. The real impact and change, the edge that BOP has today is the mindset change. We have to realize that this is important for the economy, this is important for the future generation, this is important for the sustainability of our economy in the future. And this is something that we need to really work on, looking at the long-term perspective of things. And the mindset has to be changed within the organization to treat this as the primary business than anything else. And the moment you start interacting with our team, you'll see the commitment and the kick that they get out of, delivering on this impactful scheme. And this is, to my mind, is the most important thing. The real delivery happened because there was a digital engine in place, which was obviously, had alternate data layers for credit assessment, which essentially had three pillars, which is AI scoring card, which has alternate data layer, and of course the digital. They develop the capacity to expand the digital transformation and the landscape. Digital infrastructure rests essentially, as I said, on four main things. Three being the first three being the unified portal, which the PIDB provides, the access to the data at one exchange, at the level of exchange. The other one is the system integration into different, sources of data. The third one is the AI scorecard, and that results into both a cost-effective and speed-efficient delivery of these schemes. What did we do in agriculture? We introduced livestock card and Kisan card. These are end-to-end digitized solutions. The idea was to increase the cost of acquisition of the farmer, the small farmer, and to divert them the funding towards the quality input, so that our productivity will improve. And the result is that we have been able to, in a short span of 2 years, we have been able to include 800,000 farmers into these two schemes. I'll just share with you the impact. The results are very clear-cut. The growth in borrower in BOP was 52%, the industry was 34%. In terms of growth of number of amount, BOP was 39%, industry was 14%. Now, if you put these two numbers together, aap sare mashallah ya accountant zabardast baithe hain, you will realize that from a financial inclusion standpoint, the average ticket size is much smaller in case of BOP in comparison to the industry, and that we consider as a real success. 1/3 of the industry's total borrowers out of 3 million are BOP borrowers alone, 1 million. There has been a trend, and I'll talk about it later, but I'll just leave you here with the thought, because शायद आप सबके ज़हनों में आ रहा होगा, और आप लोग माशाल्लाह से ऑडिट और अकाउंट्स के लोग हैं, तो आप लोगों को और ज़्यादा इसका ख्याल आ रहा होगा.
99% रिकवरी रेट। और वो ऐसे नहीं हुई कि वो खुद ही आके ले रहा है पैसे। You have to put the ecosystem in place in such a way that you will be able to follow up and handhold and create it easy for people to pay in time, incentivize them to pay in time so that they can get the money later on. And once that cycle is created, the farmer becomes much more responsible. It's actually a catch-22 situation. The most important thing that I want to share with you is this one, where since 2019 the total number of farmers were falling down from 4 million borrowers to 2.7 million borrowers. Last year that trend has been reversed, and now that number is 3 million, and we are targeting for 3.3 million this year. उसमें से फर्स्ट टाइम जो बीओपी ने लेके आया है वो 6 लाख बोरोवर लेके आया है, उसमें जो फर्स्ट टाइम बोरोवर है वो 56%। ये एसेंशियली ये बीओपी की स्ट्रेंथ पे आपको ट्रेंड रिवर्स होता हुआ लग रहा है। और ये छोटे बोरोवर इस तरह हैं कि 4.3 एकर्स ऑफ लैंड एवरेज के ऊपर आपको था वहां पर हर बोरोवर की एवरेज है लैंड साइज वो ये है। सेम इज द स्टोरी इन एसएमई बाय द वे। 2 प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च की थी, आसान कारोबार कार्ड जो बेसिकली स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए था 10 लाख रुपए तक का लोन, और दूसरी जो है वो मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है which is up to 30 million from 5 million, from 1 million to 5 million and then 5 to 30 million, those deals. Within a period of 6 months, Asan Karobar card had 100 billion rupees, 143 billion rupees disbursed to 100,000 SME borrowers, and these are SE borrowers. And mind you, the industry number today after this is 303. And then on the Asan Karobar, which is still going on, the total disbursement was 46,000, and around 6,000 of the new borrowers were there. These are the mid-sized entities. The result is, the operating result is that the number of borrowers growth was 632% in BOP, 65% in case of in the industry. The number of amount increase was 96% in BOP, 36% to the industry. If you put these two numbers together, you can easily figure out the average ticket size of BOP was much lower than the industry. Our average ticket size was 400,000 rupees as opposed to the industry average of 1.6 million rupees. Right now, we have 21% of the market share in terms of amount, and around 47% in terms of number of borrowers. A few things also that I missed out here, which I wanted to highlight, is the employment in terms of economic impact. तकरीबन 3 लाख नौकरियां जनरेट हुई हैं, रूरल पार्टिसिपेशन 57% रही उसमें, और खवातीन जो है वो 7,000 प्लस एंटरप्राइजेस है। जिसको कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं डालूं तो लास्ट ईयर में जो नए लोन्स बीओपी इंडस्ट्री में डिस्बर्स हुए थे वो 30,000 थे, सिर्फ इस एक स्कीम के अंदर बीओपी के 7,000। जो हमने क्या किया कि इसकी फिर एक स्टडी करवाई फ्रॉम लम्स, जो हम करवाने जा रहे हैं फॉर किसान कार्ड एज वेल, लाइवस्टॉक कार्ड टू। बट जो हमने ये स्टडी करवाई है फ्रॉम लम्स, उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है वो ये कि 86.3% जो है उनको 2 महीने के अंदर अंदर लोन मिला है। ये टू गुड टू बी ट्रू है बाय द वे। ये एसएमई को तो पैसे नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो ये 2 महीने तो कभी भी नहीं मिलते।
49.8% लोग जो है वो लो इनकम डिस्ट्रिक्ट्स में से हैं पंजाब में। 40% प्लस जो है वो नेसेंट बिजनेसेस हैं या बिल्कुल नए हैं या नेसेंट बिजनेस है लेस देन 3 इयर्स ऑफ लाइफ। एंड 95% लोग वो हैं जिन्होंने अपनी एक भी पेमेंट मिस नहीं की है, और अगर मिस की है तो उसकी रिकवरी हुई है। अगेन दिस इज 98% टोटल रिकवरी। जो तीसरा प्रोग्राम मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है लो कॉस्ट हाउसिंग का प्रोग्राम। ये हमारा स्टार प्रोग्राम है एंड इट इज द लार्जेस्ट मॉर्गेज बेस्ड लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम इन द वर्ल्ड एज वी स्पीक। आपको लो कॉस्ट हाउसिंग के बहुत प्रोग्राम बन जाएंगे दुनिया में, बट मॉर्गेज बेस्ड लो कॉस्ट हाउसिंग जो है वो आपको इससे बड़ा प्रोग्राम नहीं मिलेगा। और ये मॉर्गेज बेस इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यू मेक द पीपल मोर रिस्पॉन्सिबल टू अर्न एंड पे, नॉट एज अ ग्रांट बट एज इंडिविजुअल्स who are responsible for borrowing and paying back. The average loan size is 1.25 billion rupees. रूरल एरिया में 10 मरले तक का घर अलाउड है, अर्बन एरिया में 5 मरले तक अलाउड है। ये टोटल प्रोग्राम साइज 500 अरब रुपए का है और इसमें से 4 लाख घर जो हैं वो हमने एम किए हुए टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट 2 years. We have already completed 150,000 houses in this scheme. This is where we stand today. This is 70% of the entire commercial banking mortgages. BOP alone, this program alone. And this is the impact that BOP is creating in the low-cost housing space. In terms of its tangible benefits, you know, it's the first-time borrower are around 700,000. ये मैं सारी स्कीम्स की बात कर रहा हूँ। Borrower trend is around 57% are the first-time borrowers. इसमें जो तकरीबन 1 लाख फीमेल खवातीन भी शामिल हैं। और इसके अंदर जो डिसबर्समेंट भी है वो अगर मैं डिसबर्समेंट को लेता हूं एज रीपेमेंट एंड डिसबर्समेंट, वो तकरीबन 500 अरब रुपए की डिसबर्समेंट हम कर चुके हैं और रिकवरी भी इसका मैंने बताया 99%। इसका एचडीआई पे क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि इवेंचुअली इसका मैंने आपसे हेल्थ और एजुकेशन की बात की थी, ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह ये वहां पर आपको हेल्प कर रहा है। और 5% प्लस जो है वो कॉम्पोजिट आपकी रेटिंग ऊपर बढ़ी है इन पंजाब बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। अगर मैं इसका कंपैरिजन आपको फॉर एग्जांपल ये बताता हूं कि ये सोशल प्रोटेक्शन और वल्नरेबिलिटी का प्रोग्राम है, इसमें हमारी जो रेटिंग बढ़ी है वो 8 से 10% बढ़ी है इन पंजाब। These are not our words, these are the independent third party assessment which is happening. 3.8 million people are helped move from poor HDI to the category of middle income, to the middle HDI. The execution success is by system commercialization. आपको हर जगह पे लोगों का इंसेंटिव बिल्ड करना पड़ता है, आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, आपको अच्छा काम लोगों से करवाने का रिवॉर्ड देना पड़ता है। अगर आप उनको रिवॉर्ड नहीं देंगे तो इंसान बहुत मीन होता है, वो अच्छा काम नहीं करता। रिकॉग्नाइज करें कि अगर उसने अच्छा काम किया और इंपैक्टफुल काम किया है तो उसको प्रॉपर इंसेंटिव आप दें और कॉम्पनसेट करें। और जब आप ये करते हैं तो आपकी बॉटम लाइन भी इंप्रूव होती है। ये ऐड आपने शायद सुबह देखा होगा, आज डॉन में आया हुआ है, डॉन में आया बिजनेस रिकॉर्डर में आज सुबह ही आया हुआ है, कल डॉन में आएगा। हमारी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 155% ग्रो की है इन द फर्स्ट क्वार्टर 2026, जहां सारे बैंकों की प्रॉफिट बारिंग 3 बैंक्स जो बड़ी है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी
वहां पर बड़ी है, बाकी सबकी गिरी है। जो बैंकों की बड़ी भी है वो एट द स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑफ है, जिसमें बहुत मटेरियल जो है वो कैपिटल गेन्स का अमाउंट शामिल है। हमारे केस में वो कैपिटल गेन का अमाउंट बिल्कुल शामिल नहीं है, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो तकरीबन 100%, और जो हमारा इंटरेस्ट इनकम है वो 47% ऊपर गई है, फी इनकम 60-70% ऊपर गई है, नॉन इंटरेस्ट इनकम 35% ऊपर गई है। मगर ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारी टीम को मोटिवेशन देती है, जो मेरी टीम को किक देती है, जो माइंडसेट चेंज की मैं आपसे बात कर रहा था, वो ये है। जब हम ये नंबर देखते हैं तो हमारा खून बढ़ता है, जब हम ये नंबर देखते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, जब हम ये नंबर देखते हैं तो वी लुक फॉरवर्ड टू इंप्रूविंग दैट नंबर, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान but are people in Pakistan, for you or for each and every individual. Result is we are the largest lender of SME in Pakistan today at around 200 billion rupees. The number 2 is half of us. I'm talking about all the banks. I'm not just talking about one or two or three banks, the entire industry. When you talk about low-cost housing, as I told you, it's now at 200 billion rupees. The entire industry is 200 billion rupees. BOP alone is 200 billion rupees. The highest industry growth in terms of agriculture, 56% increase. जिसने मैंने आपको बताया, 1/3 of the entire borrower is BOP alone. Nobody comes close to us. No one, not even a single microfinance institution, let alone a commercial bank. And this is what is important in life. That is what the key in life is, and this is what I've been educated with, even earlier as well. The key takeaways, ladies and gentlemen, in the second act of responsibility of financial leadership is about risk management, not avoiding risk. Please do not avoid this. हम accountants में एक tendency होती है कि हम account risk को avoid करते हैं. Avoid नहीं हो सकता, manage हो सकता है. Design for complexity, not simplicity. ये जो एक tendency है, this has to go away as well. Make these things as simple as possible, and in the age of AI and digital, this has become much easier now. Go to the bottom. और ये आप लोग तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो आप ऑडिटर भी हैं, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं इसकी कितनी अहमियत है डिटेल की, और डिटेल की जो अहमियत है, that drives the resilience. Until you go down to the bottom, you will not be able to learn. And last but not the least, ladies and gentlemen, technology is everything. मैं यहाँ पर जो बच्चे हमारे चले गए हैं, अभी शायद उनकी क्लास थी या नमाज पढ़ने चले गए, मैं सिर्फ आपसे ये शेयर करूंगा, ये 2 किताबें हैं जो जरूर पढ़ लीजिएगा टेक्नोलॉजी के मामले में. एक है सॉवरेन इंडिविजुअल और दूसरी है हरीरी की एक तो मेरी मेमोरी भी जो है ना वो बुढ़ापा आ गया तो अगर मेमोरी थोड़ी सी हट गई, but this sovereign individual will give you a sense of how important the technology will be in the future. Individuals will become stronger than the sovereigns because of their control on technology, on the digital. Just imagine somebody having a handle on the cyber security. Entire kinetic warfare will come to a halt if somebody has that kind of control. And if the individual is if you have a better handle on the digital and AI, then trust me, you will make a big difference than the rest of the world. Thank you very much. Thank you so much, sir, for imparting valuable insights on the theme from your extensive experience. We will now have a brief question and answer session. Kindly raise your hands so that the microphone will be brought to you. और आपकी थ्रू आउट मैंने
प्रेजेंटेशन आपके क्लास को आप समझते हैं कि मैंने कंसंट्रेट करके सुना। तो सब ने इमोशनली अपने आप को आपने कैसे स्ट्रॉन्ग किया? बिकॉज गोइंग थ्रू फ्रॉम दैट फेज ये सब करना आसान नहीं है। आप ग्रोथ माइंडसेट की अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिल्ड करेंगे अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे? हाउ यू ओवरकम ऑल दैट? दिस इज जस्ट माय क्वेश्चन। थैंक यू। वेरी गुड क्वेश्चन। आपने हमारी है? या अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम डॉक्टर शुएब फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी। सर मेरा सवाल ये है कि जी सर मेरा सवाल ये है कि बैंक ऑफ पंजाब में कोई भी बैंक अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कोई भी माइक्रो फाइनेंसिंग नहीं कर रही, तो व्हाई नॉट बैंक ऑफ पंजाब आगे है और रिन्यूएबल के लिए फाइनेंस करे? आपको इसमें ग्रामी डॉक्टर शुएब जी उनकी ये बीओपी की क्या स्ट्रेटजी है? सच है। सच है, आई डोंट नो। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां मैंने बैंक ही नहीं देखे, मैं भी जस्ट हमसे अच्छा, आप कह रहे हैं प्रेजेंस नहीं है बैंक? यस, बहुत सारे बैंकों की नहीं, हमारे अपने बैंक की भी है। ओके। तो ऐसे आपका कौन सा बैंक है? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। यार आपकी तो हर जगह प्रेजेंस है। सर साथ-साथ आप भी है सर ऐसा। ओके दूसरा मेरा सवाल ये है कि सर ये जो आपने भी हमें 10 पॉइंटर्स दिए, जी दैट्स वेरी आई ओपनिंग, थैंक यू फॉर दैट। ये जो पॉइंटर्स हैं आपके, ये एक तरीके से आ रही है, आप एक सफेद से गुजरे हुए, क्या ये पॉइंटर्स पहले भी कहीं आपके जहन में थे? गुड। और आपने अपनी इन लर्निंग्स को अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी के साथ सिंक किया, वो किस तरीके से किया? बस ये दो छोटे से सवाल। वेरी गुड क्वेश्चन जी। आपके साथ जो साहब बैठे हैं उनको दे दें ताकि चार हो जी। Salim sir, my name is Shakil Faiza. Shakil. I'm a member of this prestigious institute. जी So my question is, when the life was running out of your hand, you had the call of the mayday and the pilot is told. उस वक्त आपकी नजर में लाइफ की क्या फीलिंग थी कि what is life या what is the perspective of life is that या जो भी फीलिंग आती थी, if you want to express in that in your words. Thank you. शुक्रिया जी। चलें पहले शकील से शुरू करते हैं। शकील साहब, जो मेरी अब अगली किताब आ रही है इन द कोर्ट रूम ऑफ द सेल्फ, 30 सेकंड्स राइट बिफोर डेथ, उसमें मैंने बड़ा तफसील से जिक्र किया। ख्याल है कि उसको लगेंगे अभी 2-3 महीने, पर जब वो आएगी तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। बट आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि उस वक्त क्या फीलिंग थी। अव्वल तो पहली बात ये है कि जो कम्युनिकेशन वाली मैंने अपनी लर्निंग में बात की थी, पायलट ने कभी स्ट्रेस अनाउंस नहीं किया था। अगर पायलट ने स्ट्रेस अनाउंस किया होता तो शायद कुछ लोग और बच जाते। तो ये मेडे जो आप सुन रहे हैं, ये उन्होंने कॉकपिट में नीचे तो बताया था, मगर उन्होंने पैसेंजर्स को ये आगाह नहीं किया था कि ये हो रहा है, वरना लोग ब्रेस पोजीशन में आ जाते, अपने आप को सेव करने की कोशिश करते, शायद कुछ जिंदगियां और बच जाती। दैट्स हाउ द कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब कम्युनिकेशन के ही जुमरे में जो मेरी हद तक था, वो मामला ये था कि मेरी पूरी जिंदगी मेरे सामने आ गई थी, एज माई चाइल्डहुड इन लाहौर एंड देन कमिंग बैक टू लाहौर, एंड मुझे उस वक्त कोई रिग्रेट नहीं था। तो क्योंकि मुझे कोई रिग्रेट नहीं था, तो आई वॉज रेडी टू फेस माई गॉड एंड आई वॉज अ वेरी वेरी सेटिस्फाइड मैन। मुझे कोई परेशानी नहीं थी कि मैं अपने अल्लाह ताला की कोर्ट में खड़ा होना चाहता हूँ और उसको मैं हर चीज का जवाब देने को तैयार हूं कि मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। तो अगर तो आप उस टाइम के ऊपर, जब आपको पता है कि मौत आपके सामने खड़ी हुई है, अगर आपको जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यू विल बी अ सेटिस्फाइड मैन। आप रोएंगे नहीं, आप हंसेंगे। ये तो ट्रांजिशन जिंदगी की है, हर इंसान को जाना है, मगर जिंदगी ऐसे गुजारनी है कि जाते वक्त रोए ना। आपके लव्ड वंस पीछे रोएंगे आपको मिस करके, मगर आप मत रोइए, क्योंकि आप तैयार होंगे इस बात के लिए कि मैं अपने कठहरे में, अपने अल्लाह ताला के गफूर रहीम के कठहरे में खड़े होने को तैयार हूं। सो मेरी तो ये फीलिंग थी, और इसके ऊपर जो सीक्वल अभी आ रहा है वो इसी के ऊपर है। जो बात की अली नुमान साहब ने, उसमें जो उन्होंने बात की कि ये लर्निंग्स, और जिस तरह वो
मारिया ने भी बात की थी, मैं दोनों को जोड़ता हूं कि जो लर्निंग्स थी वो पहले भी, मेरी जो लर्निंग्स थी वो काफी हद तक ऐसी थी, और मेरी यही 10 जो मैंने लिखे हैं, गालिबन ये 10 नहीं होते, 8 होते, 7 होते, मगर ये टेंटेटिव था। मैं श्योर नहीं था इसके बारे में कि क्या ये मेरी जो थिंकिंग है ये क्या सही ट्रैक पे है, सही डायरेक्शन में है या नहीं है, या मैं किसी और ट्रैक या डायरेक्शन में जा रहा हूं। इस वाक़े के बाद वो मेरी लर्निंग जो है वो रीइंफोर्स हो गई और कंफर्म हो गया है कि जो मेरी पहले थॉट्स थे वो गालिबन ठीक ही थे। अब उसको कुछ लोग जो है ना वो एक स्पिरिचुअल व्यू भी देते हैं, कुछ लोग उसको किसी और तरीके से भी लेते हैं कि जी कि ये जो मेरी पहले लर्निंग्स थी वो अब रीइंफोर्स हो गई हैं क्योंकि मेरा फेथ बढ़ गया है। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो कोई भी रीजन उसका है, वो मेरी अर्ली लर्निंग्स भी प्रीटी मच ऐसे ही थी, बारिंग डिविएशन ऑफ 10-15% हियर एंड देयर, बट वो रीइंफोर्स हो गई। मारिया, रेजिलियंस सिर्फ एक सूरत में आती है, सिर्फ एक सूरत में, वो आपका इकोसिस्टम होता है। वो आपके लव्ड वंस होते हैं, वो आपके कॉलीग्स होते हैं, वो आपके दोस्त होते हैं। और अगर आपके पास वो इकोसिस्टम मौजूद है, मोहब्बत करने वालों का और सिंसियर लोगों का, तो फिर कोई चीज आपको नहीं हिला सकती। सिर्फ इस चीज पे काम करें कि वो इकोसिस्टम डेवलप करें, लोगों को टच करें, उनकी इम्पैक्ट जिंदगी की ठीक करें। कोई पोजीशन, कोई पैसा मैटर नहीं करता, कोई पोजीशन, अगर उसका इम्पैक्ट लोगों पे नहीं आ रहा, हर कोशिश ये कीजिए कि लोगों पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए। अब वो हम उसको आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, उसको छोड़ दीजिए। जो आप समझते हैं पॉजिटिव, उसी पे काम कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव निकलेगा उसमें से। तो दिस इज व्हाट इट ऑल अबाउट। रेजिलियंस ओनली कम्स व्हेन यू हैव द इकोसिस्टम इन प्लेस दैट कैरीज यू थ्रू। अब वो एक किताब है बड़ी इंटरेस्टिंग, इसका नाम है उस किताब का नाम है कल्चर मैप, एरन मायर्स की। उसमें उसने रिसर्च की हुई है कि डिफरेंट कल्चर्स में किस तरह डिफरेंट चीजें जो है वो मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐसे एनवायरनमेंट जो लो कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट है, उसके अंदर सिस्टम इतना तगड़ा होता है, जिस तरह हमारे पास वेस्ट में है, दैट कैरीज पीपल थ्रू। हमारे सिस्टम इज अ हाई कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट जहां पीपल कॉन्टेक्ट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, because the system is broken, it is not there. And this is what is the important aspect that we all need to keep in mind to create that ecosystem, because otherwise the state is not providing that necessary ecosystem which is there. अली साहब, आपने बात की बैंकों की फिजिकल प्रेजेंस की। मेरा ख्याल है थोड़ा सा आउटडेटेड है, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी इज एवरीथिंग एंड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज सो हाई थ्रू द फिजिकल मीन्स that a branch खोलना मजीद जो है ना वो feasible नहीं है। Marginal cost of branch is very low, less than going down the digital route. अब हम digital route को किस तरह promote कर सकते हैं, आगे लेके चल सकते हैं? I think this is what the future is, not the physical branches anymore. I think it's too late for it now to talk about it. आखिर में डॉक्टर शुएब साहब, आपका गालिबन मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स को हम सोलर में क्यों नहीं पैसे दे रहे, यही आपका गालिबन कहने का मकसद। तो ऐसा नहीं है, हम वहां पर भी वी आर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल। ये जो आप सारी स्कीम्स देख रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी बेनिफिशियरीज जो हैं वो हैं जिन्होंने, मैं एसएमई की बात कर रहा हूं, कि जिन्होंने सोलर जो है उसके लिए पैसे लिए। तो मेरे पास पर से सेपरेट नंबर नहीं है सोलर का, मगर अगर आप देखेंगे तो इसमें सब्सिक्वेंट जो है
वो कंट्रीब्यूशन जो सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है वो गालिबन सोलर से ही रिलेटेड होगा। अच्छा, रूफटॉप सोलर जो है ना वो कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अब उसकी फिजिबिलिटी थोड़ी सी चैलेंज हो गई है, चली गई है। इंडिविजुअल जो जिनकी प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज है, जो नौकरी में है, वो तकरीबन सारों ने वन वे और दी अदर अपने आप को अकोमोडेट कर लिया। जिनके पास नहीं है उनके लिए जरा थोड़ी सी तकलीफ की बात है। एंड आई थिंक उसके अंदर जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोग्राम व्हिच इज नेसेसरी टू मेक श्योर दैट सोलराइजेशन टेक्स प्लेस। द इशू इज कि सोलराइजेशन until the war broke out there was a completely different view on that one. I guess that needed to be addressed at the government level. But ये आप जैसे और मेरे जैसे लोग जब डिमांड करेंगे ना, तो देखिए सरकार दुनिया में कभी कोई ऐसी नहीं होती कि जो अपने ओन पे काम करे। सोसाइटी से प्रेशर आता है। मेरी जो दूसरी किताब है जिसका नाम है आउट ऑफ द बॉक्स, उसमें पूरा आर्टिकल है, उसका नाम है चार्टर ऑफ सोसाइटी। आपने बहुत सुना होगा चार्टर ऑफ बिजनेस, आपने सुना होगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। इट्स चार्टर ऑफ सोसाइटी। अगर हम सब एक चार्टर पे अग्री कर लें कि ये होना चाहिए, तो वही चार्टर ऑफ सोसाइटी इकोनॉमी बनेगा, और वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनेगा, और वही चार्टर ऑफ बिजनेस बनेगा। नथिंग मोर, नथिंग लेस। इट्स एट द इंडिविजुअल लेवल वी ऑल हैव टू reconcile to the fact what is important for us and for our future generations. क्या all banks SME सेम ट्रीट करते हैं, उनका क्राइटेरिया सेम होता है? क्योंकि SME की डेफिनेशन मैंने ऑब्जर्व की है कि some banks treat according to their capital or their other different treat करते हैं। तो क्या हम जो कंपैरिजन करते हैं उसमें ये मैटर करता है या नहीं करता? बड़ा जो सब सिंपल सवाल है, इसका जवाब आपको फौरन दे देता हूं। वो सेम है, वो स्टेट बैंक ने जो डिफाइन की है उसी को फॉलो करता है, उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है। अच्छा, SME से मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछना चाह रहा था कि IT इंडस्ट्री जो है उसके लिए बैंक्स क्या करते हैं? क्योंकि वहां पे लोन्स के लिए आप कह रहे हैं कि बैक एंड पे सपोर्ट नहीं, उनके पास कुछ एसेट्स नहीं होते बैक एंड पे, तो वहां लोन्स मिलना बहुत प्रॉब्लम्स करता है। तो उसके लिए क्या बैंक्स करते हैं या क्या कर रहे हैं? ये जो आप मतलब वो आप बात कर रहे हैं फ्रीलांसर्स की, आप बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, आप ऐप डेवलपर्स की बात कर रहे हैं। देखिए, ये दुनिया भर में जो काम होता है वो वेंचर कैपिटलिस्ट करते हैं, ये बैंकों का काम नहीं है। बैंक्स आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ टेकिंग द वेंचर कैपिटल रिस्क। व्हाई? Because banks are the trustee of the depositors' money, so they cannot afford to take a risk, which is a high risk business. And number two, they do not have the expertise to run that high risk business either. So therefore, you have to collaborate with the others to have that high risk business supported. बैंक सपोर्ट करते हैं, but via venture capital companies. हमारे यहाँ वो इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोगों ने मेरा ये आर्टिकल देखा है अभी जो डॉन में आया था लास्ट वीक, जो इस नाउ गॉन वायरल कंप्लीटली। इसका नाम है वियतनाम मूवमेंट, उसका हेडिंग। उसमें मैंने जो 4 चीजें लिखी हैं, उसमें मैंने पहली चीज ये लिखी है कि हमारी जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसको उसको अकाउंटिंग से ग्रेजुएट करके इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हमें डिवाइस करना चाहिए। सेकेंड चीज मैंने लिखी है उसके अंदर कि जो हमारे रेगुलेटर्स हैं उनको हमें और इंडिपेंडेंट और एम्पावर करना चाहिए। तीसरा जो मैंने उसमें चीज लिखी है वो ये लिखी है कि जो हमारा पूरा प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है उसको हमें और एक्सेलरेट करना चाहिए, लेकिन जो रह जाती हैं एंटिटीज उनको गालिबन एक फंड के थ्रू इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से निकाल के उनको और कमर्शियल लाइंस पे चलाना चाहिए, जिस तरह के और जगह पे चलती हैं। और आखिरी वो चीज है जो मैं आपने भी मुझसे पूछी है कि वेंचर कैपिटल का इकोसिस्टम बनाइए। हमारे पास पेंशन फंड का सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। दुनिया में जो डेवलपमेंट हुई है वो पेशेंस कैपिटल से हुई है। वो मेरा एक और आर्टिकल उससे पहले भी आया था, उसमें मैंने एजुकेट किया था कि वो जब तक कि आपका वेंचर कैपिटल का बिजनेस इन प्लेस नहीं होगा, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना लोकल, वो प्रमोट नहीं हो सकती। एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम, अदरवाइज you will not be able to do anything about it.
आप देखें तो जितनी भी आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जी, है जी। तमाम पेंशन फंड का बट बहुत छोटा है ना लेकिन उसके बावजूद भी वो भी इस चीज में involved जी, है। बड़ा बिजनेस कौन सा है ना, वो जब उसका क्वांटम बढ़ेगा ना तो फिर यू विल बी एबल टू एक्सपेक्ट कि उसका कोई 1, 2, 3, 4% ही आ जाएगा। तो आप यूबीआई को प्लीज सजेस्ट करते हैं उनको जी होना चाहिए, आई एग्री जी, होना चाहिए। मैं तो रेकमेंड यही कर रहा हूँ कि उनको ईओबीआई है या हमारे गवर्नमेंट का जो अपना पेंशन फंड है वो अनफंडेड है, दैट्स नीड टू बी फंडेड एज वेल। अच्छा, प्रॉब्लम हमारा क्या है कि हम है कैश स्ट्रॉप एसेट रिच कंट्री, तो वही एसेट को जो है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में दे और उससे डेवलप करके अपने पेंशन फंड को बिल्ड करें। ये अभी का प्रोसेस नहीं है, 5-7 साल लगेंगे, बट कम से कम आपके पास 5-7 साल बाद एक इकोसिस्टम तो डेवलप हो जाएगा ना, which has long term liquidity available and which has the entrepreneurship के लिए patience capital available, which doesn't necessarily be 100% of the pension capital, maybe 10%, 5% is good enough for it. पूरी यूएस की पूरी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है ना, वो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी के ऊपर बेस्ड है। हमारे पास वो इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली। मेरा नाम जफर सईद है। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी कि आपने जो चार्टर्ड ऑफ सोसाइटी की बात की है, जी बहुत ही खूबसूरत बात की है, शुक्रिया। और इसके साथ देखिए जो आपका पोटेंशियल और जो आपकी एनर्जी जो आप लोगों ने ये बीओपी में किसान कार्ड और स्टॉक कार्ड और इसके अलावा एसएमई कार्ड वगैरह का जो आप लोगों ने सिस्टम निकाला है, जी जी, और इससे जो है ना बहुत बड़े मास लेवल के पर लोगों को फायदा हो रहा है। तो उसमें ये है कि आप लोगों के पास क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप लोगों ने डेफिनेटली डेवलप कर लिया है कि इसमें किस तरीके से इसको सिक्योरिटाइज करना है और इसको किस तरीके से प्रोसेस करना है। मैं हो सकता है इधर थोड़ी देर से आया था, लेकिन ये है कि जो चीज़ मुझे इसमें कभी महसूस हो रही है कि अगर इसके अंदर हम स्टूडेंट एजुकेशन प्रोग्राम वल्लाह आपका अच्छा कवर किया हो, नहीं किया कवर, तो ये आपकी बात ठीक है। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, किस तरह इसको सिक्योरिटाइज किया जा सकता है, किस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो ये काम आप लोग जरूर कर सकते हैं। जी नहीं, बहुत शुक्रिया जबर साहब आपका ना, आपका हमारे पे एतमाद का बहुत शुक्रिया। जो एजुकेशन लोन है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक अमर है और हम उसको देख रहे हैं बहुत करीब से, हम उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे पहलू हैं जिसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोशिश हमारी ये होगी कि इंशाअल्लाह ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम कुछ ना कुछ में भी करें। लेकिन इन द इंटरम जो हमने किया है काम, जो मैंने आज मेंशन नहीं किया था, आप देर से तो जरूर आए थे मगर मैंने मेंशन को नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ। वो हमने ये किया है कि जो हमारी एक माइंडसेट अभी है ना, वो ये है कि अगर आपने कोई स्किल गेन कर ली है तो स्किल का ना कॉम्पनसेशन उस तरह मिलती है। बेटा तुम जरा और राइट पे आ जाओ ना तो जफर साहब टोटल ब्लॉक हो जाएंगे बेटा, शाबाश। तो ना वो उस तरह मिलती है, उसके अंदर क्या नाम है, स्किल को ना उस तरह सोसाइटी में स्टेटस मिलता है और ना कॉम्पनसेशन में स्टेटस मिलता है। चाइना ने ये ट्रिक को क्रैक कर लिया था कि जहां पर अगर आपने कोई स्किल गेन की हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की हुई है, तो यू विल बी कंपनसेटेड बेटर देन द सिंपल मास्टर्स और इवन एमबीए फॉर एग्जांपल, एंड दैट गिव्स यू अ डिफरेंट स्टेटस इन द सोसाइटी टू। हम ये समझते हैं कि स्किल डेवलपमेंट जो है ना वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है which can change the fate of, तो not necessarily the education, but अगर आप लोगों को स्किल दिलवा देंगे तो वो एक बहुत बड़ा फेवर होगा, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट फॉर आउटसाइड पाकिस्तान। और उसमें हमने एक काम ये किया है कि हमने पाकिस्तान का पहला जो पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट बॉन्ड है, इम्पैक्ट बॉन्ड, गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है ना उसको लेवरेज करके प्राइवेट सेक्टर से पैसे बोरो करके इसी को 15 बिलियन को बढ़ा के 60 या 70 बिलियन कर सके। और फिर हम इंटरनेशनल आउटकम फंडर्स को लेके आते हैं कि जो हमें स्किल की आउटकम की बेसिस के ऊपर एक कॉम्पनसेशन देते हैं
जो हमारे लिए भी अट्रैक्टिव होती है और उनके लिए भी अट्रैक्टिव होती है। और जब तक आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को इन चीजों में लेके नहीं आएंगे तब तक ये बात बनेगी नहीं। किसी ने यहाँ पर CSR का जिक्र किया था, आई डोंट नो, मुझे आपने गलिबन जफर साहब कहा था, CSR का भी किसी ने कहा था, यहाँ पर मेंशन किया था। ये जो है ना, ये जो हमारे, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो SME हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, these are not CSR activities until and unless you make them into a mainstream item, you will not be able to create an impact, because हमारी requirement बड़ी enormous है और हमारी सरकार के resources बहुत कम है, लिहाजा आपको उसको मेन स्ट्रीम में लेके जाना पड़ेगा। और हमने कोशिश ही की कि हम स्किल को वहाँ लेके आ जाएं जहाँ वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। तो ये एजुकेशन में हमारा ये रोल है, एंड वी आर वेरी होपफुल दैट इंशाल्लाह दैट विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट। सर एकेडेमिया में ना इशू ये आता है कि यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स आप पढ़ाती हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं पढ़ाती हूँ, बट मैं फाइनेंशियल सेक्टर में एकेडेमिया और इंडस्ट्री के दरमियान में ब्रिज का भी काम कर रही हूँ। मेनी डूइंग सर यूनिवर्सिटीज में ना एक इशू आता है, जो क्लास का सबसे नालायक बच्चा होता है एज पर द टीचर्स, ठीक है, वो स्किल्स में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। नहीं, ये कोई कंक्लूसिव चीज नहीं है सर इस तरह से, लेकिन जो है ना यहाँ पे फिर यूनिवर्सिटीज जो है क्या करती है कि वो फिर उन बच्चों को ना डाउन करती है, बिकॉज HSC की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है उनको वो मीट करनी होती है, सो दे ऑलवेज ट्राई कि जो सर जी सर ठीक है सर आप तो कह रहे हो ठीक है, इस वाले पैटर्न पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फेवर करता है। तो आप जो भी इस पे प्रोग्राम करें तो इस चीज को थोड़ा सा रखिएगा नजर में कि वो स्टूडेंट्स जो कि स्किल्स में अच्छे हो, ठीक है, वही ऊपर आता है। अच्छा मारिया, बात पता है क्या है? बात ये है कि जो आपका कंक्लूजन है ना, वो कोई कंक्लूसिव चीज नहीं है। मैं होता ये है हमारे यहाँ ना, हम एक कोई एग्जांपल उठा के और उसको हम नहीं, जैसे कहते हैं ना कि भाई वो स्टीव जॉब्स जो है वो ड्रॉप आउट था MIT का, फॉर एग्जांपल स्टैनफोर्ड का, या जहाँ का भी था, या फलाना आदमी जो था वो तो ये क्या नाम है उसका, बिल गेट्स, वो तो ड्रॉप आउट था, पता नहीं हार्वर्ड का या MIT का। भाई जो उन्होंने 75 प्रेसिडेंट पैदा किए हैं वो तुम्हें नजर नहीं आ रहे? एक बंदा तुम्हें नजर आ गया कि वो ठीक है, और जो सारे बाकी CEOs बैठे वो नजर नहीं आ रहे। तो ये एक आर्गुमेंट बनता है एट टाइम कि जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो इसको जो है। अब मैं आपको एक और अपना कैरियर डालूं, मैं बाय द वे बहुत बुरा स्टूडेंट था और सारी जिंदगी सिर्फ 50% में पास होता था, लेकिन मेरा ही कजन था जो फर्स्ट आता था और वो स्किल में भी बहुत अच्छा था, वो क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलता था, वो म्यूजिक भी बहुत अच्छी करता था। तो ये कोई कंक्लूसिव चीज नहीं है, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके लिए टॉलरेंस होनी चाहिए सोसाइटी में हर एक के लिए, कि वो उन बच्चों को एक्सेप्ट करें द वे दे आर और उनको इनकरेज करें। कौन सा बच्चा किस डायरेक्शन में निकल के क्या काम कर लेगा, यू नेवर नो। सो उनको बजाय पुट डाउन करने की, जो आपकी दूसरी बात है वो मैं आपसे एग्री करता हूँ, उनको और इनकरेज करना चाहिए। और बाय द वे इसका सबसे बड़ा जो सेरा होता है ना, सबसे ज्यादा काम जो खराब करते हैं वो आपके अपने घर वाले करते हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं। आपको कंपेयर करते हैं अपने भाइयों से, बहनों से, आपको कंपेयर करते हैं अपने कजन से। कभी भी मत करें, ये बड़ा गलत चीज है। हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ होती है, उसको उसकी स्ट्रेंथ पे खेलने दें, उसकी स्ट्रेंथ की तारीफ करें, खत्म हो गई। So do that, sir. Thank you so much. शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर समीना खलील है। मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन एंड बाय ट्रेनिंग। आज मेरा यहाँ पे आने का सिर्फ मकसद ये था कि मैं आपको सामने से देखना चाहती थी, क्योंकि मेरी नजर में आप अल्लाह ताला के उन बहुत ही कम, जिनको मैंने तो नहीं देखा, चुने हुए लोगों में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने दूसरी जिंदगी दी, और उस जिंदगी का कुछ ना कुछ मकसद जरूर होगा जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको चुना। क्या पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपको जो ये दूसरी जिंदगी मिली है, तो कभी आपने ये भी रियलाइज किया कि अल्लाह ताला आपसे क्या काम लेना चाहते थे
जिसकी वजह से आपको ये जिंदगी मिली है, तो ये आपने कभी रियलाइज किया? अच्छा, मेरा ख्याल है किया होगा, लेकिन कुछ उसकी थोड़ी बहुत आप तस्वीर मैं आपसे बता बात दें। सकता दूसरी हूँ। आप बात पहले ये है- दूसरा मुश्किल सवाल पूछ लें, क्योंकि पहला बहुत मुश्किल सवाल पूछा आप। नहीं, मुश्किल फिर मैं सवाल वापस नहीं है, आऊँ। ये तो याद अच्छा चलिए मुश्किल भी पूछ जी प्लीज। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, तो आजकल जो है जिस किस्म के हालात हैं हमारे मुल्क के, इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, तो मेरा ख्याल है कि सभी परेशान हैं, आप अच्छी तरीके से इसको समझते हैं। तो आप जिस लेवल पे बैठे हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत अहम पोजीशन दी है। आप ओवरऑल सब कुछ जानते हैं, पहचानते हैं। तो मैं सिर्फ एक ये चाहती हूँ कि आप कोई एक ऐसा रिफॉर्म बताएं आपकी नज़र में जो बहुत अहम है, और जो अगर वो रिफॉर्म अडॉप्ट किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, उससे हालात कुछ बेहतर होना शुरू होंगे। वरना तो खराब सेक्टर में है हर जगह है, एक रिफॉर्म से शायद बात नहीं बनेगी। फिर भी हर इंसान ये सोचता है कि शायद ये हो जाए तो ये हो जाए, ये हो जाए तो वो हो जाएगा। तो होता है ना, one reform actually triggers a lot of things which would be beneficial for the economy and for the country. तो ये दूसरा सवाल है। देखा, मैंने कहा था ना मुश्किल सवाल आप दूसरा वाला पूछेंगे। पहले मैं दूसरे का जवाब देता हूँ, जो पहले के बाद दूसरे का जवाब, फिर नोबडी विल बी। इत्तेफाक की बात है, कल ही वो नदीम उल हक साहब जो है ना, वो अपना एक उन्होंने बनाया हुआ सीआर, उसमें उन्होंने मेरा वो आज का सीरीज चला रहे हैं कि वन रिफॉर्म एनीबॉडी, उसमें मेरा आया है, वो ही मैं आपको बता देता हूँ। अव्वल तो बहुत मुश्किल काम है कि आप एक चूज करें रिफॉर्म और कहें कि ये हो जाए, बट अगर मुझे आप पुश करें और कहें कि नहीं एक ही करना है, आपने मुझे स्ट्रेट जैकेट करना पड़े उसको, तो मैं ये कहूँगा कि वो एक रिफॉर्म जो है वो ये होना चाहिए कि जो आपका टैक्सेशन का निज़ाम है ना, उसको जुडिशियस होना चाहिए। आज आपका टैक्सेशन का निज़ाम, ऑल्दो आपकी जो टैक्स टू जीडीपी है वो 10.6% हो गई है 9.4% से बढ़ के, मगर दिस इज लार्जली रेट ड्रिवन, इट हैज टू बी ब्रॉडन। और जो 3 सेक्टर मैंने आपसे बात की है, अगर वो 3 सेक्टर जो हैं हम इंक्लूड कर लेते हैं टैक्सेशन में, जो आज 15% देते हैं टू डायरेक्ट टैक्सेस, टू द डायरेक्ट टैक्सेस, अगर हम उनको इंक्लूड कर लेते हैं और जुडिशियस बना देते हैं, तो जो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ सकती है वो सेक्टर्स में आप रेट कम पड़ेंगे, और अगर आप उनको ऐड कर देंगे तो आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 14% पे चला जाएगा। सो देयरफॉर, और 15% तकरीबन सस्टेनेबल लेवल कंसिडर किया जाता है कि जिसके ऊपर आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, उस पर आप ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं। इंडिया 18% पे। तो मेरे हिसाब से जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लायंस भी, और पहले तो पॉलिसी लेवल पे भी और फिर कंप्लायंस लेवल पे भी, कि आपको हर इंसान को अपने शेयर का टैक्स देना और आपने रिकवर करना। अच्छा, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई बड़ी अनहोनी बात है। यूएस के अंदर सबसे बड़ा क्राइम जो है ना, वो ये टैक्सेशन का मामला है। वो क्या नाम था उसका जो बहुत बड़ा वो था, एल कैपोन। वो टैक्सेशन वो फंसा था, वो टैक्स की अवॉइडेंस के ऊपर फंसा था, वो ड्रग की सेल पे नहीं फंस रहा था। इतने सख्त लॉज हैं और इतनी डिफिकल्ट तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं। हमारे यहाँ वो चीज लैकिंग है। अगर हम वो कर देंगे मेरे ख्याल से, तो हमारे फिस्कल अकाउंट के अंदर जो रूम अवेलेबल होगा, उससे हम एजुकेशन और हेल्थ पे और लोगों की को जो पॉवर्टी से हमें निकालना है, उस पर निकालने में हमें आसानी रहेगी। बाकी तो डॉक्टर साहब अगर मुझसे आप पूछे तो फ्रैंकली स्पीकिंग सबसे बड़ा मसला हम इंडिविजुअल्स हैं। मेरी पूरी किताब का थीसिस ये है कि अगर हम एट एन इंडिविजुअल लेवल ठीक हो जाए ना, तो पूरी सोसाइटी ठीक हो जाएगी। हम खुद टैक्स पे करना नहीं चाहते, हमारी कोशिश हमें बड़ा, हम दूसरे को तो क्रिटिसाइज करने में 2 मिनट नहीं लगाते। कभी हमने अपने गिरबान में झांक के देखा है कि हम खुद कितने गलत काम कर रहे होते हैं? वो हम कभी नहीं करते। अगर हम सब अपने इंडिविजुअल लेवल पे ठीक हो जाएंगे ना, तो मेरा ये ख्याल है कि हम सोसाइटी में रहेंगे जो बहुत अच्छी सोसाइटी है। और ये इंसान का खुद ठीक होना जो है बड़ा कंटेजियस होता है, ये लोगों को फिर आगे
कोई लॉ नहीं है यूके में, तो यूके में तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है ही नहीं, सारी सोसाइटी नॉन पे चल रही है, हमारे यहाँ वो नहीं। जिस दिन हम एक सोसाइटी बन गए, जिस दिन हम वो चार्टर सोसाइटी की जो बात अभी जफर साहब ने कह रहे थे, जिस दिन हम चार्टर सोसाइटी को फॉलो करने लगे, जिस दिन हम एक सोसाइटी बन गए, एक पेज पे आ गए, उस दिन हमारी सारी प्रॉब्लम्स सामने जाएंगी। मैंने आपको इकोनॉमिक जवाब भी दे दिया और सोशल जवाब भी देने की कोशिश की। अच्छा, अब रीजन फॉर माई सर्वाइवल, वैसे अब मेरा इसमें पक्का ईमान है। अच्छा, एक तो ये कि मैं ये पता ही नहीं करना चाहता रीजन फॉर सर्वाइवल, क्योंकि मेरे पास का जवाब है। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अब मैं जब जिंदा हूं और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो मैं उसको मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर लूं, रादर देन फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि मुझे क्यों सर्वाइव, क्योंकि मेरे पास का जवाब नहीं। दूसरी बात ये है कि मुझे किसी किस्म का कोई मुगालता नहीं है कि मैं कोई वो ऐसा काम कर सकता हूं जो दुनिया में कोई और का आदमी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। मुझे कोई इस किस्म की जरा सी गलतफहमी नहीं। जो मैं काम कर सकता हूं वो मुझसे अच्छा कोई और कर सकता है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी जरूर है, वो पॉसिबिलिटी उसके लिए उसने मुझे क्यों चूज किया, मैं आपको उसका भी अपनी तरफ से जवाब दे दूं। वो ये है कि वो ये शायद चाहता है कि मैं वो बात बताऊं कि जो मौत से पहले मैंने कन्फ्रंट की है, और मैं वापस आऊं और वो आके बात करूं लोगों के साथ, क्योंकि वो हर इंसान की जिंदगी में आना है और हमने उसके लिए तैयार होना है। We all have our faith and some have myth about life after death, but nobody talks about life before death. So I guess that life before death is also equally important than life after death. And जो life before death की हम बात करते हैं, उसके अंदर आप अपने कटहरे में खुद खड़े होते हैं और अपने आप को खुद जज कर रहे होते हैं कि आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और जब आप या तो आप अपनी जिंदगी इस तरह गुजारी हो कि आपको कोई रिग्रेट ना हो, या आप अपने आप को इतना बड़ा इंसान बनाएं कि आप अपने आप को माफ कर सकें तो छोटी मोटी चीजों पे। हम छोटी मोटी चीजों पे ना अपने आप को शायद कर रहे हैं, दूसरे आदमी को भी माफ नहीं करते। खुदा के वास्ते दूसरों को भी छोटी मोटी चीजों को माफ करें। और खुदा के वास्ते अब ये अगर वीडियो नहीं चली तो कोई एंड ऑफ द कोई जिंदगी खत्म तो नहीं होगी, हमने उसको यहाँ खड़े होकर बात कर ली, मगर हम उसके ऊपर एक इशू बना सकते हैं बहुत बड़ा, ये क्यों नहीं चला, ये तो मामला है। और अगर आप नोट करेंगी ना तो हम छोटे छोटे मामलात में ही फंसे हुए हैं खाली। तो लिहाजा मेरा तो कहना ये है कि अल्लाह ताला शायद ये चाहता था कि मैं जाऊं और जाके ये किताब भी लिखूं और मैं इसके ऊपर बात भी करूं। अब किताब लिखना हर एक की बस की बात नहीं है। मेरा एडवांटेज ये है कि मैं जिस फैमिली से आ रहा हूँ उस फैमिली में ये तीसरी जनरेशन है जो किताबें लिख रही है, और हमारी फैमिली में 50 किताबें, मेरे कजन्स की, मेरे फूफा की, मेरे खालू की, मेरे ताया की, मेरे खाला की, उनके जो ये मेरे आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ जी मैं सैयद मोहम्मद तकी साहब मेरे नाना थे, रईस अमरोही साहब उनके बड़े भाई, जॉन एली साहब छोटे भाई, उनकी बेतहाशा किताबें हैं, उनके वालिद की। तो मुझे लगता है ये कि वो डीएनए मेरे अंदर था और गालिबन मैंने इसलिए किताब लिखी। अच्छा, ये भी आसान नहीं है। उसके बाद उसके ऊपर बात करना, आज 55वीं टॉक है। हर दफा जब आप बात करते हैं ना तो रिजरेक्ट करता है। आप लोग तो उस तरफ बैठे हुए थे, आपने देखा नहीं जब ये वीडियो चल रही थी, तो इट वाज नॉट इजी फॉर मी टू एक्चुअली कीप माय इमोशंस अंडर चेक, बिकॉज इट resurrects lots of memories which you do not want to be reminded of. So मैंने 4 महीने मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट ली थी, और अब मैं किताब लिखने के बाद भी मेंटल हेल्थ, मेरी जो वो है साइको, जो मेरी फिजियो कह रहा हूँ, साइकोथेरेपिस्ट है, वो जरा अच्छी शक्ल की भी है, तो वो भी एक रीजन बन जाता है कि मैं चला जाऊँ। लेकिन जो फैक्ट ऑफ द मैटर, जो तो मजाक की बात है, बट जो सच्ची बात है वो ये कि मुझे ये बातें करने के बाद जरूरत पड़ती है फॉर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। इट इज नॉट इजी। गालिबन अल्लाह ताला ने मुझे शायद इसीलिए बचाया होगा कि मैं ये करूं। दिस इज द ओनली प्लॉजिबल थिंग दैट आई कुड थिंक ऑफ, द रीजन फॉर माय सर्वाइवल। आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग।